Hello, everyone. Welcome back to another fun yet explanatory session of Class 8 CBSE board. Actually, many of you requested for the videos of Class 8 Science. So here we are with our first chapter of Class 8 CBSE. I will be covering the whole syllabus of CBSE in just 3 days. So you'll be getting videos after videos, so you can watch them as per your comfort. So Vigilantes is basically an initiative that is started for students by students. We basically provide you high standard quality materials along with question banks, PDFs, and handwritten notes and video explanations like these and that too for free of cost. So let us start with our very first chapter, our very first explanatory session of class 8, that is microorganisms. Okay, so since it is CBSE plus it is, CBSE is a bit lenient. So I will be conversating most of the time in Hindi as well as English, but my medium of talking would be in Hindi in this video so that you guys can understand it more clearly. I did not use that medium with ICSE boards because they have to write each and everything as per the book. But in CBSE, we have leniency, so I can tell you some extra points as well as points which are, actually going to be written in the examinations. So let us start with our very first chapter, that is microorganisms. ठीक है? So first of all, microorganisms क्या होता है? Microorganisms are those organisms which cannot be seen by naked eyes. So microorganism is any organism, ठीक है, that is not seen by naked eye. What do you mean by naked eyes? Naked eyes का मतलब होता है अंधी आंखों से हम उसको नहीं देख सकते. That means we would need to have you can say a medium to see it, such as microscope. ठीक है, माइक्रोस्कोप हम लोग यूज करते हैं बहुत ऐसे छोटे छोटे चीजों को देखने के लिए. So microscope is used over here. Okay, so microorganisms are those kind of organisms which can only be seen, only and only be seen by a microscope. Now, what are the examples of microorganisms? Okay, so what are the examples of microorganisms? Just a second. Yeah, microorganisms, the example are fungi, that is fungus, bacteria, viruses, amoeba. Amoeba still can be seen, via naked eye. I can say, yeah, for class 8, this much is required. Okay, uske aage mat padho, otherwise you'll get confused. There are many types of organisms such as hydra, planaria, earth, sorry, not earthworms. You have blue-green algae. So those are different types. Now, these particular organisms, they can survive under different types of climates. Okay, what different types of climates? They can survive different types of climate. Now, what do I mean by different types of climates over here? By this line, I mean that they can survive even if ranging from 0 degrees Celsius
to boiling point of water 100 degrees Celsius. They can survive anywhere in this range. Okay, so they can survive in air, water, soil. Then you can say food products. Then you have your bodily fluids also. Then hairs. Then humans. Okay, and from deserts to marshy, muddy lands, you can find them everywhere. Okay, now let us talk about some common, you can say, microorganisms. Let us firstly discuss about virus. Virus, आजकल you have seen COVID-19, best example. COVID-19 आजकल बहुत फैल रहा है. ये क्या है? ये एक वायरस है जिसको बोलते हैं हम लोग सार्स. ठीक है? That is severe autoimmune respiratory syndrome. SARS nCoV 19. ये एक्चुअल इसका वायरस है. फॉर इजी रेफरेंस इट हैज बीन गिवन अ नेम एज कोविड-19. जैसे तुम लोगों का रहता है ना, अगर इफ योर नेम इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सार्स के जैसा है, तो यू माइट बी गिवन अ निकनेम, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज समवन्स नेम मुत्तुस्वामी दीक्षित अय्यर. अब तुम तो इतना लंबा नाम नहीं बोलोगे, यू माइट हैव गिवन इट निकनेम. सेम वे में सार्स nCoV-19 को कोविड-19 का निकनेम दिया गया. नाउ वायरसेस, यू मे बी you can say, you may be surprised to know viruses are the only microorganisms that can be crystallized and stored for research purposes. ठीक है? They can actually be crystallized and stored for research purposes and many other purposes. Okay? Now, viruses का तो we discussed, ठीक है? They, the virus, when it attacks, sorry, why did I draw a line? I don't know. The viruses, when they attack someone, this someone is known as the host. Okay, and this is a vector, but don't use that word right now, okay, because it is a bit controversial. Just use virus, and when it attacks someone, just name them host. So virus actually acts upon a host. ठीक है? Virus is such a peculiar creature कि जब वो body के बाहर रहता है, body के बाहर रहता है, ठीक है, body के outside में रहता है, तब it is non-living. ठीक है? बट जैसे ये बॉडी के अंदर जाएगा, तब इसका राक्षस मोड एक्टिवेट हो जाता है. ठीक है? तब ये चल मचलने लगेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, डिवाइड करेगा, एंड इट वुड स्प्रेड ओवर द होल बॉडी. यू कैन इवन टेक एग्जांपल ऑफ इन्फ्लुएंजा. इन्फ्लुएंजा नाम नहीं सुना होगा, बट ये सुने होंगे, सर्दी, खांसी, बुखार. ये सब किसकी वजह से होता है? यही महाशय है, इन्फ्लुएंजा ही है उसके पीछे. इसकी वजह से तुमको जैसे ही सीजन चेंज होता है, सर्दी, खांसी, बुखार तुरंत पकड़ता है. इन्फ्लुएंजा ही है उसके पीछे. वी कॉल इट द फ्लू वायरस फॉर इजी रेफरेंस. ठीक है? बोलते हैं ना, फ्लू हो गया, वायरल हो गया, वायरल हो गया, बोलते हैं. दिस इज दैट वन. एवरीवन इज सफरिंग टू दैट, टू बी वेरी ऑनेस्ट राइट नाउ. ठीक है? So that is an example of virus. ठीक है? ये different medium से फैल सकते हैं, such as air, water, soil, footprints, hand, humans, clothes. ठीक है? So wherever जो infected person है, उसके droplets जहां पर भी जाएंगे, वहां पर वो फैल. मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है वायरस के बारे में, बिकॉज अभी इतना ऐसा माहौल क्रिएट हो गया कि तुम लोग ऑलरेडी वायरस के बारे में जानते हो क्या होता है. ठीक है? लेट अस टॉक अबाउट बैक्टीरियम्स. Bacteriums,
और बैक्टीरिया। टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, बैक्टीरिया मेरा फेवरेट है, बिकॉज बेचारा बहुत दुख झेलता है। ठीक है, दुनिया का हर दुख झेल लेता है ये बंदा, ए टू जी सब कुछ। ठीक है, सो बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, अब what do I mean by single celled over here? Although you might know it, but still, those of you who do not know what is a single cell organism, see, basically, I am a human, ठीक है, मैं टिश्यूज से बना हूं, बोन से बना हूं, ठीक है, उन वो टिश्यूज किससे बने? दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है, सो सेल्स गिव राइज टू टिश्यूज, गिव राइज टू ऑर्गेनिज्म, है ना? तो दीज सेल्स, ठीक है, व्हेन दे आर कंबाइंड लाइक इन ह्यूमन बीइंग्स, दे आर नोन एज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नेम से ही डिकोड करते हैं। मल्टी मीनिंग्स बहुत सारे, सेलुलर मतलब सेल वाले, ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल वाले ऑर्गेनिजम्स को, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव मेनी सेल्स प्रेजेंट इन देम आर नोन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अ ह्यूमन बीइंग, अ गोट, काउ, ठीक है, यू कैन से योर टेडी बियर, जस्ट किडिंग, इट इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, इट इज मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, yeah, so bacteria are single cell organisms, ठीक है, they have rigid cell wall, rigid cell wall, ठीक है, मतलब उनका जो सेल वॉल रहता है, लेट मी ड्रॉ अ बैक्टीरियम रियली क्विकली। कौन से कलर से बनाऊं? चलो ये कलर से बनाते हैं, ठीक है, ये बन गया बैक्टीरिया, ये बन गया न्यूक्लियस, ये बन गया गोल्गी एपैरेटस, ये सब इसके ऑर्गेनेल्स बन गए। ठीक है, ऐसे साइटोप्लाज्म दिखा दो, ये बन गया बैक्टीरिया। ठीक है, अब इसका जो आउटर वॉल रहता है, दिस वन इट इज नोन एज सेल वॉल। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द सेल वॉल। नाउ अब ये जो सेल वॉल है, इसमें ये जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए क्या है? दे आर न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, इनका क्या काम क्या रहता है? इट ट्रांसफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलो अब मैंने जो ये सब लिखा यहाँ पे इतना लंबा सा, मैं वो एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या लिखा। ठीक है, सो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस रहता है, इट हैज क्रोमोसोम्स इन इट। क्रोमोसोम्स आर बेसिकली मेड आउट ऑफ डीएनए व्हिच इज डीऑक्सीराइबोन न्यूक्लिक एसिड। ये थोड़ा सा कोर्स से हटके है, बट स्टिल यू शुड नो अबाउट दिस। ओके, सो दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स दे हैव डीएनए। ठीक है, डीएनए इज अ न्यूक्लिक एसिड मीनिंग इट कंट्रोल्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए कि तुमको बोला जाता होगा कि तुम अपनी मम्मी जैसे दिखते हो, तुम अपने पापा जैसे दिखते हो, अरे नहीं तुम अपने वो दूर दराज के रिश्तेदारों जैसे दिखते हो, बोला जाता है ना ऐसे। दैट इज व्हाई, दैट इज ड्यू टू डीएनए। डीएनए तुम्हारा जेनेटिक हेरिडिटी कैरी करता है। ये थोड़ा सा 9th-10th का टॉपिक है, बट स्टिल अभी थोड़ा सा ग्रास्प ले लो। ठीक है, तो डीएनए कंट्रोल्स योर जेनेटिक हेरिडिटी। ठीक है, तो कितने कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होंगे, तुम कितने गोरे रहोगे, तुम कितने काले रहोगे, नॉट बीइंग रेसिस्ट, बट तुम कितने गोरे रहोगे, तुम कितने काले रहोगे, तुम्हारा, सॉरी फॉर दैट, तुम्हारा वेट कितना रहेगा, ठीक है, तुम्हारा एज स्पैन कितना रहेगा, तुम जॉब क्या करोगे, एवरीथिंग कुड बी डिकोडेड बाय डीएनए। देयर कैन बी मेड अ प्रेडिक्शन। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अ डीएनए इज। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। मैं क्या बता रहा था? सो दे हैव अ थिक सेल वॉल, मतलब ये जो सेल वॉल रहता है ना, ये बहुत रिजिड रहता है। क्योंकि देखो अब इसको सरवाइव करना एकदम गंदे गंदे क्लाइमेट्स में, कहते हैं कि प्रोटेक्शन तो चाहिए ना,
So that protection is provided by cell walls. It provides what? It provides protection. Correct? Now let us move on. They have thick cell walls. इसका मैं notes भेज दूंगा, notes लेने की अभी जरूरत नहीं है. Those who are watching and they are not joined on our Telegram or YouTube, sorry, Telegram or WhatsApp, jaldi jaldi join कर लो so that I can provide you notes over there too. If I can, I might also provide the links in the description to the notes. So yeah, let us move ahead. So bacteria can only and only be seen under a microscope, as I told you. माइक्रोस्कोप में ही दिखेगा ये, ठीक है. मैंने बताया इट लुक समथिंग लाइक दिस. ऐसे दिखता है, ऐसा गंदा सा दिखता है, ठीक है. कभी कभी इसमें ऐसे पूंछ भी निकली रहती है, तो अभी वो पूंछ को मत देखो, अभी सिर्फ बैक्टीरिया को देखो, ठीक है. माइक्रोस्कोप में माइक्रोस्कोप से इनको देखा जाता है, ठीक है. नाउ फंगाई. फंगाई देख के डरना मत. फंगस का ही सिंगुलर फॉर्म होता है फंजाई, ठीक है. तो अगर ग्रुप है फंजाई का तो उसको बोलेंगे फंगस, ठीक है. अगर सिंगल फंगस है, सिंगल है तो उसको बोलेंगे फंजाई. फंजाई कैसे दिखता है पता है? ये डायग्राम भी 10th का है, बट स्टिल मैं तुमको दिखा देता हूं. देखो ऐसे दिखता है कुछ फंजाई. तुम्हारा जैसे नॉर्मल प्लांट रहता है ना घर पे, ऐसे ऐसे दिखता है. इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम. स्पोरेंजियम के आजू बाजू ना ऐसे टफ सा कवरिंग रहता है, ताकि कोई एनिमल आए तो उसको हर्ट ना कर पाए. देखना कितना भी पानी फेंक लो, कितना भी कुछ कर लो, फंगस जाता ही नहीं है जब तक उसको सोना पकड़ के बैठ के. दैट इज ड्यू टू स्पोरेंजियम का टफ कवरिंग ओनली. इट इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर, तो पानी से कुछ नहीं होने वाला उसका, ठीक है. बाकी पानी अगर उसको मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, साथ में न्यूट्रिटिव कंटेंट मिलेंगे तो और ग्रो करेगा. क्यों बोला जाता है कि ब्रेड को गीले में मत रखो? सेम रीजन है, क्योंकि फंगस आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है. एक कॉमन एग्जांपल बताऊं फंगस का, दैट इज राइजोपस. राइसोपस. ब्रेड देखा है? ब्रेड में जैसे ब्रेड या फिर रोटी हो गया, ठीक है. ये रोटी बना लेते हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे दिखता है ना, पर्पल नहीं रहता, स्टिल रोटी ऐसे दिखता है, ठीक है. उसमें देखोगे तो ऐसे तुम लोगों को ब्लैक कलर का मार्क ऐसे ऐसे दिखेगा, ऐसे ऐसे. देन फिर उसके बाद ऐसे व्हाइट व्हाइट कुछ दिख जाएगा इसके ऊपर, ऐसे. ऑल दो व्हाइट नहीं है, बट मान लो व्हाइट है, ठीक है. ऐसे व्हाइट व्हाइट दिखने लग जाएगा. दैट इज बेसिकली राइजोपस ओनली. राइजोपस ने अपना कॉलोनी बसा लिया, ठीक है. तो फंगस के बारे में मैंने बता दिया. वो आते हैं, दे आर सैप्रोफाइटिक इन नेचर. सैप्रोफाइटिक मतलब, सैप्रोफाइटिक मत याद करो, उन लोग दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर ओन फूड. देखो ब्रेड के ऊपर लगा था ना, ये कहाँ गया? हाँ, ये देखो, ये ब्रेड और रोटी के ऊपर लगा था. जूम करके दिखा रहा हूँ. ब्रेड और रोटी के ऊपर लगा था. ये है ब्रेड, ये है रोटी. दोनों के ऊपर लगा था कि नहीं? तो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये खाने के लिए, ठीक है. इट इज नॉट मेकिंग देयर ओन फूड. इसके ऊपर लेगा, इसका न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेगा, एक दिन ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये बचेगा ही नहीं, बिल्कुल भी पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है. पूरा फंगस कवर कर लेगा, सड़ा लेगा, गला देगा, एंड कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है. तो दैट इज, कीड़े वगैरह लग जाएंगे. दैट इज द फंक्शन ऑफ फंगस, ठीक है. फंगस आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल डिकम्पोजर्स, ठीक है. कभी कभी ये पैरासाइट्स पे भी फेरेट ऑर्गन, इनका बेसिकली एक और रहता है फंक्शन, जो कि पैरासिटिक नेचर रहता है, तो वो दूसरों के ऊपर भी रहते हैं. फंगस, ह्यूमन बॉडी में भी फंगस पाया जाता है. एक कंडीशन है जिसको अपन बोलते हैं एक्जिमा, आई गेस, पता नहीं, नाम याद नहीं आ रहा है. बट उसमें क्या होता है, स्कैल्प में ना फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है. और फिर जैसे जेनाइटल एरियाज है तुम्हारे, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, वहां पर भी कभी कभी फंगल इन्फेक्शन होते हैं. दैट इज वाई बोला जाता है कि अपना जो हाइजीन है उसको अच्छे से प्रॉपरली मेंटेन रखा करो. अगर तुमको बियर्ड वगैरह है तो, ऑल्दो तुम्हारे नहीं होंगे अभी, अगर तुमको बियर्ड वगैरह है तो बियर्ड वगैरह टाइम टाइम पे ट्रिम करो. देन उसके बाद जो ट्रिम कर रहे हो वो तुम्हारी बॉडी पे मत गिरने दो. नहा के आए हो, सॉरी बाल कटवा के आए हो तो तुरंत नहाने जाओ, ठीक है. देन हैव अ हेल्दी
अपनी रूटीन, देन उसके बाद अपनी जेनिटल्स को अच्छे से साफ किया करो, एवरीथिंग सब मम्मी लोग बताते हैं ना क्या क्या करना चाहिए। दैट इज ड्यू टू दिस ओनली, बिकॉज एक बार अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया ना तो इट इज लाइक मतलब रह जाता है फिर, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट रहता है उसको छुड़ाना, एंड इट कॉजेस मेनी कॉम्प्लिकेशंस। So fungus is the bad character of this whole microorganisms. हाँ, वो है कि कुछ कुछ बैक्टीरिया अच्छे होते हैं, कुछ कुछ प्रोटोजोन्स अच्छे होते हैं, कुछ कुछ ये सब अच्छे रहते हैं, बट नॉट एज मच। ठीक है ना, बहुत बातें कर लिए, लेट अस मूव ऑन टू एल्गे। एल्गे ग्रीन का रहता है तो उसको ग्रीन में ही लिखते हैं, ठीक है, बेचारा बुरा मान जाएगा वरना। सो एल्गे ग्रीन सब्सटेंसेस विच बेसिकली फ्लोट ऑन वाटर, ठीक है, ये सिंगुलर भी रहते हैं। सिंगुलर एल्गे कैसे दिखता है पता है, ये देखो बन गया सिंगुलर। बहुत सारे रह गए तो बहुत सारे बना दो, पास पास बनाना, इतना दूर दूर मत बनाना, तुम्हारी मैडम मारेगी वरना तुमको। ऐसे पास 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 बना दो इसको, ठीक है। तो ये ऐसे कॉलोनी बसा लेते हैं। कभी देखा है पानी, पानी के ऊपर ऐसे तैरते हुए हरी हरी चीजें, है ना, पानी के ऊपर ऐसे हरा हरा हो जाता है पूरा, दैट इज एल्जे ओनली, ठीक है। काई बोलते हैं ना, काई, पता नहीं स्पेलिंग करेक्ट लिख रहा हूँ कि नहीं, मेरी राइटिंग भी बहुत खराब है, समझ जाना। ठीक है, ट्राई कर रहा हूँ मैं हिंदी में समझाने का, समझ जाना। काई बोलते हैं ना, दैट इज एल्गे ओनली, जिसको मम्मी ब्लीचिंग पाउडर से घिस घिस के निकालती है, तुम जाते हो आधे घंटे पहले ब्लीचिंग पाउडर लेके आने के लिए, दैट इज दैट। नाउ एल्गे दे ग्रो ऑन वेट सर्फेसेस, ठीक है। देन अच्छा, ये ना तुम कभी भी नोटिस करना, ये हमेशा स्टैग्नेंट वाटर पे रहेगा। स्टैग्नेंट वाटर पे रहेगा मतलब ये ना ऐसे जो पानी बहते रहता है ना उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। जहां पर वाटर जमे रहता है, स्टैग्नेंट रहता है, एक पॉइंट पे अटके रहता है, वहां मिलता है, ठीक है। एंड स्टोन्स हो गए, सॉइल हो गए, तुम्हारी घर में अगर कंक्रीट वाली दीवार होगी, ठीक है, जैसे प्लेग्राउंड वगैरह एरिया में, वहां देखना काला हो जाता है पूरा दीवार कंक्रीट का वाइट से, क्यों होता है, इन्हीं महाशय के कारण, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन वेरी वाटरी एंड मॉइस्ट प्लेसेस। नाउ वी हैव प्रोटोजोआस। प्रोटोजोन्स, इनका नाम सुन के बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, लाइक ऐसे लगता है कि हाँ कुछ है, बट कुछ नहीं रहते हैं, ठीक है। सो प्रोटोजोआस आर बेसिकली यूनिसेलुलर अगेन। प्रोटोजोन्स के बारे में अभी उतना जानने की जरूरत नहीं है, ये जानना कि यूनिसेलुलर होते हैं, एंड कुछ कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं which are occurring in human body। बस अभी यही दो चीज जान लो, ठीक है, और जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक जान लो कि प्लास्मोडियम करके रहता है प्रोटोजोआ। मलेरिया बोलते हैं ना, मलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, इसी महाशय के कारण होता है प्रोटोजोआ, कॉजिंग मलेरिया। बढ़िया, ठीक है, मलेरिया नहीं देना किसी को, क्योंकि मलेरिया भी कंटेजियस होता है, एक के खून से जाता है दूसरे के खून में फैल जाता है। सो अगर तुमको है, अपने आसपास मच्छरदानी मत दो, मच्छर से ही फैलता है ये, पता है ना। गुड। नाउ माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। मैंने बताया था ना कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अच्छे होते हैं, ठीक है। कुछ यूज आते हैं अल्कोहल के प्रिपरेशन में। अल्कोहल क्या होता है, तुमको पता है अल्कोहल क्या होता है, ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं, ठीक है। अल्कोहल्स आर बेसिकली एडिक्टिव सब्सटेंसेस, जिसको अपन बनाते हैं रेप ग्रेप को फर्मेंट करके अलोंग विथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मैं मजाक करते करते पढ़ा रहा हूँ, ऑफेंड मत हो जाना कोई, ठीक है। तो लेट मी ड्रॉ ग्रेप्स। अंगूर है, ये अंगूर की टोहनी भी बनाती लोगों ने, क्या बोलते हैं इसको, टोहनी, क्या बोलते हैं, स्टेम, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका पहले जूस निकाल लिया जाता है, ठीक है। ये जूस को एक डब्बे में डाल दिया जाता है, ठीक है, एंड देन ये डब्बे को छोड़ दिया जाता है सड़ने के लिए, टू रॉट, ठीक है। रॉट फॉर हाउ मेनी इयर्स, 1 ईयर्स, 2 ईयर्स, देन ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है वाइन। देन इसको फिल्टर करते हैं,
अच्छा, ये करने मत लग जाना घर पे, ठीक है? बिल्कुल नहीं। दिस इज माई स्ट्रिक्ट एडवाइस। ये सब चीज घर पे करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत टीडियस प्रोसेस रहता है, घर पे होएगा ही नहीं, ठीक है? और करना भी नहीं है। यू आर वेरी यंग, पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब चीज पे ध्यान मत दो। फिल्टर करना है, ठीक है? वरना किसी किसी के दिमाग में चलते रहेगा कि ये बना के देखेंगे एक बार घर पे करके, नहीं होगा। एक दो साल कहाँ रखोगे सड़ने के लिए? उसको पर्टिकुलर क्लाइमेट चाहिए रहता है सड़ने के लिए, कपड़े से ढक के रखना पड़ता है। तो ऑनलाइन वीडियोस मिल जाएंगे अगर तुमको अच्छे से देखना। तो अभी चलो अपने टॉपिक क्या आता है, फिल्टर करके इसको सर्व किया जाता है, ठीक है? एंड इसका मेडिसिनल यूज भी है, जैसे पेनिसिलिन। पेनिसिलियम जानते हो क्या होता है? पेनिसिलियम, सॉरी, पेनिसिलम एक एंटीबायोटिक, वर्ल्ड्स फर्स्ट एंटीबायोटिक, द वर्ल्ड्स फर्स्ट मेडिसिन इज पेनिसिलिन। ये आएगा एग्जाम पे, अच्छे से याद करना, ठीक है? पेनिसिलिन हमेशा पूछता है, एक मार्क के क्वेश्चन में आएगा, एक्सप्लेन करने बोलेगा पेनिसिलिन क्या होता है, शायद तक तुम्हारे में दिया भी होगा, ठीक है? पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से मतलब क्या होता है कि बहुत सारे इलनेसेस को ये ट्रीट कर सकता है एट ए गिवन टाइम, ठीक है? ये एक एग्जाम्पल है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है? हार्मफुल रहता है, मैंने बताया, तब से बता ही रहा हूँ कैसे हार्मफुल रहता है, ठीक है? लेदर खराब कर देगा, फूड खराब कर देगा, शरीर को खराब कर देगा, खा जाएगा, सड़ा देगा, सब कुछ कर देगा, ठीक है? अब मैं ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में लिख के मत आना, ठीक है? खुद से, खुद के वर्ड्स में। मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ इंग्लिश में? बिकॉज आई वांट यू टू फॉर्म योर ओन वर्ड्स। है ना? मेरे को क्या है, मैं जस्ट जस्ट बता दूंगा, मैं नोट्स भेजूंगा, मैं चला जाऊंगा, बट तुमको समझ में आना चाहिए, ऐसे बॉन्ड बनना चाहिए ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग टाइम, मैं छोटे से चैप्टर को अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है? नाउ, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, ठीक है? देखे होगे किसी ना किसी एक को, कोई चुन्नू मुन्नू होगा आजू बाजू में, गया होगा अभी फूड पॉइजनिंग के लिए, आजकल तो बहुत चल रहा है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग का मेन रीजन क्या रहता है पता है? कॉकरोचेस। एंड दैट इज व्हाई आई हेट कॉकरोचेस, ठीक है? उन लोग क्या करेंगे, ठीक है? उन लोग जाएंगे गंदे गंदे नालियों में, ठीक है? उन लोग जाएंगे तुम्हारे बेड के नीचे, उन लोग जाएंगे कचड़े कचड़े एरिया में, जहां से वो बहुत सारे बैक्टीरियाज अपने पैर पे लेके आते हैं। बैक्टीरियाज, यू कैन से जर्म्स, ठीक है? सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑल टुगेदर जर्म्स बोल लो। अभी तुम्हारे में चल जाएगा, आगे जाके थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, बट जर्म्स अभी के लिए बोल लो। या फिर बेस्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज कर लो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे में मत डालना मेरे जैसे, मेरे पास जगह कम है, ठीक है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डाल दो, ठीक है? तो कॉकरोच कैसे दिखता है, मेरे को बनाना नहीं है, बट स्टिल तुम लोग देख लो कैसे दिखता है। ऐसे रहता है, उसके तो ऐसे फैंग्स रहते हैं, ऐसे पैर रहते हैं उसके, बड़ा गंदा से दिखता है वो। एंड पंख भी रहते हैं उसके, उड़ सकता है, बच के रहना, उड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। अगर उसको थ्रेटन किए ना सही में, उड़ जाएगा तुम्हारे ऊपर, चढ़ जाएगा, शरीर के अंदर घुस जाएगा, मतलब शरीर के अंदर एज इन कपड़े के अंदर घुस जाएगा, बहुत परेशान करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ। सो इनके जो लेग्स होते हैं ना, इनके लेग्स कैसे दिखते हैं पता है? ये देखो ऐसे, एंड इस पे छोटे 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 बाल रहते हैं, ठीक है? इन्हीं बालों पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म चिपक जाते हैं आके। अब ये चिपक गए तो ये आएंगे तुम्हारे प्लेट पे चढ़ेंगे। रात के टाइम पे किचन पे निकल के देखना कितने कॉकरोचेस घूमते रहते हैं तुम्हारे प्लेट के ऊपर। अगले दिन उठोगे, पेट खाना नहीं खाओगे 2 दिन के लिए, ठीक है? तो इसलिए बोला जाता है प्लेट्स को हमेशा यूज करने से पहले धोया करो। तो ये जो पैर से जो आए ना, ये सब इसके ऊपर ऐसे चढ़ जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर जो तुम जो भी इसमें फूड रखोगे, जैसे ऑरेंज खा रहे हो, तो ये ऑरेंज के थ्रू तुम्हारे जाएंगे बॉडी में, ठीक है? देन तुम हो जाओगे बीमार। बीमार हो गए, डॉक्टर के पास भागोगे, डॉक्टर तुमको क्या खिलाएगा? पेनिसिलिन? नहीं, पेनिसिलिन नहीं देगा, मजाक कर रहा हूँ, जोक था, समझो उसको उस तरीके से, ठीक है? पेनिसिलिन बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम रहता है, ठीक है? बहुत सारी डिजीजेस को क्यूर करने के लिए यूज करते हैं, एंड अच्छा रहता है अगर पेनिसिलिन से ही ट्रीट हो जाए। नाउ, नेक्स्ट थिंग वी हैव फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है? अब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फूड के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है? अब मैं जैसे एक एग्जांपल दूं तुमको यीस्ट का, ठीक है? ईस्ट भी एक फंगस ही है, ठीक है? एंड उसको तो हम बड़े मजे से डाल के खाते हैं केक में, तो इट इज फंगस ओनली, ठीक है? देन हमारे पास हो गए दही मास्टर, ठीक है? दही जमता है, इट ऑकर्स ड्यू टू सम एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज प्रेजेंस ऑफ
लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड का कंटेंट ज्यादा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होते हैं, तो मिल्क जो है कर्ड पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इन द सेम वे फूड प्रिजर्व करना चाहिए, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर ग्रो करेंगे, खाएंगे। मैं बताया ना ब्रेड और रोटी का एग्जांपल, वही होगा, ठीक है। इससे फूड को प्रिजर्व करके रखा करो। फंगस से बचाने के लिए एयर टाइट कंटेनर के अंदर दबा के रखो, वेलक्रो वाले पैकेट्स आते हैं उसके अंदर दबा दो। और चिप्स अगर खा रहे हो, चिप्स खुला पड़ा हुआ है, उसको ढक के रखो, या फिर किसी प्लेट में डालो, ढक के रखो, डब्बे के अंदर रखो, ठीक है। तो दीज आर सम मेजर्स यू कैन फॉलो इन ऑर्डर टू नॉट फॉल इल। नाउ अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एंटीबॉडीज का। अच्छा, अब ये ना थोड़ा सा मेडिकल साइंस के अंदर घुस रहा है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होते हैं? जब भी इम्यून सिस्टम को हार्म पहुंचता है, ह्यूमन इम्यून सिस्टम को, तो वो रिलीज करता है जो बॉडीज आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वायरस, ये कौन है हमारे कोविड भैया, ठीक है, ये है कोविड भैया, ठीक है। कोविड भैया जब एंटर करेंगे इस लड़के के अंदर, इसका नाम दे दो, मोटू नाम दे दो इसका, ठीक है। मोटू पतलू वाला मोटू रहता है ना, नाम दे दो, ठीक है। ये मोटू के अंदर जब ये घुसे कोविड भैया, तो ये क्या किए, इसके अंदर घुसे नाक के थ्रू या फिर माउथ के थ्रू या फिर कान आंख वगैरह के थ्रू, ठीक है। फेस बन गया यार तो आ, ये एंटर करेंगे, ठीक है। ये करने लगेंगे डिवाइड, ये जाएंगे इनके नेजल कैविटी में, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये भी बताता हूँ नेजल कैविटी क्या होता है। ये जाएंगे नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी क्या रहता है? ये तुम्हारा नाक है, सॉरी ये नहीं है, यही देख लो यार, ये देखो, ये तुम्हारा फेस है, करेक्ट। ये वाला जो रीजन है, ये नोज है, ये ठीक है। इसके अंदर से दो होल्स गए हुए हैं जहां से हम लोग ब्रीद इन और ब्रीद आउट करते हैं। अब इसका जो इंटरनल रीजन है प्लस योर बैक रीजन, ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे अंदर जाता है, ठीक है। ऐसे मत समझना, ऐसे जाता है, ये ऐसे जाएगा, देन यहाँ से मर्ज होके इसोफेगस के साथ ये साथ में रन करेंगे, ठीक है। फ्रॉम हियर बैक हियर, ये जो टच कर रहे हो ना, एडम्स एप्पल बॉयज में, गर्ल्स में भी रहता है कभी कभी, प्रोमिनेंट नहीं रहता है बट रहता है। तो दिस एडम्स एप्पल इज बेसिकली योर दैट थिंग ओनली, सांस का नली बोलते हैं ना जिसको, गला दबा के मार देते हैं, दिस इज ड्यू टू दिस ओनली। ये दब जाता है पूरा, आदमी मर जाता है, सांस नहीं ले पाता वो, कहाँ से कहाँ चले गया। सो नेजल कैविटी इज दिस ओनली, नाक का जो कैविटी है, नेजल मतलब नाक, कैविटी मतलब गड्ढा, तो नाक का जो एम्प्टी हॉलो रीजन है, साइनस एरिया जिसको बोलते हैं, ठीक है। उस एरिया में जाके ये वायरसेस इंफेक्ट करते हैं, वहां बैठते हैं, देन दे रिप्रोड्यूस। ये मैं रिप्रोडक्शन में बताऊंगा कैसे करते हैं, ये सेक्शन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करते हैं, ठीक है। देन ठीक है, तो ऐसे ही रिप्रोड्यूस करके देन अपने आप को फैलाते हैं, देन तुम जब छींकते हो तो वो साथ में बह जाते हैं हर जगह, ठीक है। दैट इज वाई बोला जाता है 12 कितना 6 फीट की जरूरी, मास्क है जरूरी, 6 फीट की दूरी, मास्क है जरूरी। तो इट इज सेइंग कि 6 फीट दूरी बना के रखो ताकि ड्रॉपलेट्स नीचे गिर जाए। मास्क हमेशा पहन के रखो कि ड्रॉपलेट्स निकले ही ना, तुम्हारी में ही रहे वो, देन मास्क पे जाके अच्छे से घर पे वॉश करो, ठीक है, या फिर फेंक दो, 10 रुपए वाले चले जाते। तो अब ये जो बन रहा है, ठीक है, ये जो रिप्रोड्यूस करके इतने सारे वायरसेस अंदर बन रहे हैं तुम्हारी बॉडी के, मल्टीप्लाई हो होके 1 से 2 बने, ठीक है, 2 से 4 बने, ठीक है, 4 से 8 बन गए, ऐसे करके ट्वाइस द नंबर में ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। ऐसे ही करते करते बहुत सारे बन गए, इसको कह लो बॉडीज। अब इनके अगेंस्ट जो तुम्हारा इम्यून सिस्टम काम करेगा, इनको जो मारेगा उसको बोलते हैं एंटीबॉडीज, ठीक है। तो दैट इज अबाउट एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज का, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताऊं मैं तुम लोग को वैक्सीन का। सबको जब अभी वैक्सीन लग ही रहा है, ठीक है, डरना नहीं, बट वैक्सीन इज व्हाट, वैक्सीनेशन लगता है वायरस के लिए, वैक्सीनेशन ऑफ अ वायरस इज नथिंग बट, अभी बता दूं क्या? अभी नहीं बताऊंगा, 9th-10th में हो उस टाइम बताऊंगा, थोड़ा सा सहने के लिए रखोगे। बेसिकली कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं जिनको बॉडी में डाला जाता है टू ट्रिगर दिस प्रोसेस, ठीक है। बता ही देता हूँ, छोड़ो। ये जो वायरसेस है इनको डीएक्टिवेट किया जाता है,
ठीक है, मतलब इनको कमजोर बनाया जाता है, ठीक है। देन इनको क्लोन किया जाता है, ठीक है, इनका एग्जैक्ट कॉपी बनाया जाता है, देन इनको हमारी ह्यूमन बॉडी में भेजा जाता है, ताकि वायर तुमको हो ना कोविड-19, बट तुम्हारा बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज क्रिएट करना चालू कर दे, बिकॉज वो डिटेक्ट किया कि कुछ बाहर का है मेरे अंदर बॉडी में, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज वो करूंगा, स्प्रेड करूंगा। तो दैट इज व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ वैक्सीन। इसको अपने वर्ड्स में लिख लेना, इंपॉर्टेंट रहता है, 2-3 बार पूछ चुका है, ठीक है। नाउ वैक्सीन हो गया। पैस्चराइजेशन कुछ नहीं है। पैस्चराइजेशन में क्या किया जाता है, इसमें 70 डिग्री सेल्सियस तक मिल्क को हीट करके, ठीक है, देन 10-15 सेकेंड के लिए हीट किया जाता है, देन उसको तुरंत कूल डाउन करके स्टोर किया जाता है। इसको बनाया था लुईस पैस्चर ने, ठीक है, पैस्चराइजेशन। स्पेलिंग गलत होगी तो माफ करना, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ बिकॉज लंबा हो जाएगा सेशन, ठीक है, कोई नहीं देख पाएगा। नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, सॉइल से प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन, कुछ कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी उनको फिक्स करते हैं, दैट इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली, ठीक है। तो नाइट्रोजन लेस और मोर कांस्टेंट रहता है उसके थ्रू अपने इसमें एनवायरनमेंट में। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन. Do let me know if you have any doubts, and do like, share, and subscribe to our YouTube channel, which is Vigilantes for students and by students. Again, at Vigilantes, we bring you many a content from various sites and various corners of the globe. We try to send you the best concepts as possible, so you can prepare for your exams as well as, play a little bit together. I hope you do well in your examination. I hope you rock it. Till then, next time, bye bye.